Okay, is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, so in the last class we discussed about Form 1040. So just a minute. Okay, so here is the Form 1040, how it exactly look like. In the 1040 form, we fill first of all about the filing status. Next, if we are claiming some dependent or if we are as a dependent on somebody else return, then we can show here. And if we have dependents, we should like write their names with their social security number. Then this is the column which includes about gross income, which include all the type of income like from W2, from other schedules. Then there are certain above the line deductions. And after subtracting this above the line deduction, we have our adjusted gross income. From adjusted gross income, we will deduct the standard deduction or itemized deduction. Then we have our qualified business income deduction. And after subtracting all these, we will get our taxable income and we will calculate the tax on the basis of our tax bracket, income tax bracket. Next, we will compare this tax with the alternative minimum tax, and then we have certain type of credits, and then the taxes withheld or paid, all these things. So we started with our discussion with the gross income. So I explained you about different types of income. So majorly we have uh, four types of income. First is portfolio income. Second is ordinary income. Next is capital gain and losses. And fourth one is passive income. So ordinary income is the income you are getting for services, wages, salaries, commissions. It is reported in your form W2. And other type of income, for example, your gambling income, uh, your any kind of bonuses, that is, or IRA distribution, that is directly reported on the form 1040. Next is the capital gain and losses which you get when you sell some capital property, that is reported as the in the schedule D, capital gain and losses. Next is our passive income, that is the income from our flow through entities and our rent and royalties. These are the passive income which we show in the form E, Schedule E. Next, we have our portfolio income, that the income we are getting from our investment like interest and dividends. So all this income we discussed in the last class. So broadly, our income include all these and certain are excluded. For example, if you're getting any gift, any inheritance, any life insurance proceed on the death of somebody, like if you are a beneficiary and getting some proceed, then it will be a non-taxable income for you. Then certain fringe benefits, like if your employer is giving you certain kind of benefits apart from your salaries, then some of the benefits are non-taxable. For example, if you're getting any adoption expenses, any child care expenses, so that are non-taxable, but these are subject to certain kind of limitations. Next, we have our bond, municipal bond interest. It is also non-taxable. Qualified scholarship. So if you are getting any scholarship and you are utilizing that amount of scholarship in like in your studies only, like you are paying your tuition fees, you are buying your
study materials, then it is non-taxable for you. Next is, how do we determine the amount of income? It will depend. If the income is in the form of cash, then the amount will be amount actually you are receiving, or it is constructively received, means you are getting the right to receive it, whether or not you are getting any physical possession or not. Property means fair market value. If you're getting any services, then it is also the fair market value. Next, we discussed about certain kind of like income which we actually realized but not recognized, that are installation sales, like kind exchanges, involuntary conversion, and contribution to the retirement plans. Next, cash method, accrual method. Cash means when you are actually receiving. Accrual means when you are even recognizing income when it is earned, and recognizing your expenses when it is incurred. Next, we discuss in detail about salaries and wages part, like what kind of salaries, wages, and certain fringe benefits which are taxable and which are non-taxable. So mainly taxable part was if you're getting any salaries, wages, any kind of tips, any kind of fees, commissions, bonuses, any kind of non-cash compensation. So these are all taxable amount. But if you are getting any de minimis fringe benefit, means benefit that are very small in value. For example, if you are using a company's stationery that have a very small value, so it will be a non-taxable income for you. Then if you are like qualified transportation expenses, any employer provided meals, so if your employer is providing you any transportation expenses, any kind of logging meals, that will be a non-taxable. Important part is group term life insurance. So if you're getting any insurance from your employer, then if the coverage is up to $50,000, then it will be non-taxable for you. But if it is above $50,000, then the excess amount will become the taxable income for you. Okay. Next, these are also certain kind of expenses which are reimbursed by your employer, but it will be non-taxable but subject to certain kind of limitations. Okay, just a minute.
Okay, sorry for the pause. Uh, our next topic, next stock-based compensation. Like if you are getting any stock in terms of your compensation, then the amount of stock that will be taxable, it will depend on the type of stock you are getting. Like if it is a qualified stock, then it will be taxable only when you sell that stock. But if it is a non-qualified, it will be taxable when you are exercising. A stock-based compensation, its type and its amount of recognition will come in more detail when you if you are choosing the tax compliance subject. But in regulation, this is enough only. This part was like mentioned twice, so I am skipping this. Okay, so this was all about your salaries and wages part, or your income that is reported in form W2. Next is your schedule B. In schedule B, you show the interest and dividend part. So we discussed about certain type of interest are taxable and certain are non-taxable. So important was a non-taxable municipal bond interest, US saving bond interest. So these are non-taxable. So if you're like you have certain state or local government obligation and you are getting certain kind of interest, that will be a non-taxable income for you. For dividend, mainly dividends are taxable, but if the dividend is a qualified dividend, that the taxable rate will be preferential rate. And if you are getting any stock dividend, it will be a non-taxable income for you. But if there is an option to purchase cash dividend instead of stock dividend, then it will become a taxable part for you. Okay. Next, property dividend, if you are getting, it will be taxable at the fair market value. If you are getting any stock dividend, it will be a non-taxable income for you. And if you are getting any dividend, it will be taxed at ordinary tax rate. Again, I already told you, but if it is a qualified dividend, it will be taxed at the preferential tax rate, means usually less than the ordinary tax rate. Capital gain dividend, it will be taxed as long-term capital gain. Okay, so if you are getting the dividend from a corporation and they are giving you the dividend from their current earning and profit or accumulated earning and profit, then it will be a taxable dividend for you. But and if the dividend is reducing your stock basis, then up to the amount of stock basis, it will be a non-taxable return of capital for you. So if you're getting any dividend in excess of this current and accumulated part, then it will be a return of capital and reduces your stock basis. Excess over basis will be a capital gain, which you report as the capital gain and taxed at the capital gain rates. Again, this part will come in detail in the TCP section. Don't worry, it is not in detail in regulation part. So for qualified dividend, we have these condition. Uh, the time period should be 121 day. Dividend and interest also shown on 1099 form.
Then we have this stock basis. Again, this part is mainly is in TCP, but if and some part will come when you are studying about the taxation of partnership or S corporation. So what happens? I already told you, if the distribution is come out of the earning and profit account, then it will be a taxable dividend. But if you're getting any distribution in excess of these amount, then it will be a return of capital and reduces your stock basis. And if you are getting any more distribution in excess of your stock basis, then it will become a capital gain for you. Okay, any doubt till here? I think we discussed up to this in the last class. So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will start our next topic now. Any doubt? Any doubt? No. And others? Harsh, No, ma'am. Tanisha, Harsh. No, ma'am. No, no Okay, doubt. okay. Okay, next is disposition. Disposition means कि when you are selling or exchanging or transferring any property where the ownership or control changes. Like if you are selling your property, any capital property, if you are like exchanging your one kind of property to the another similar kind of property, or if you are getting any reimbursement from for your property, like maybe your property destroyed in some natural disaster and you're getting any reimbursement, and from the reimbursement amount you are purchasing another property, this is the involuntary conversion. So what happens in this disposition? We have certain kind of gain or loss that is realized, because there is not always chances na ki you are purchasing a property and selling on the same amount, and you are exchanging on the same amount. So every time we have certain gain or loss associated with this disposition. So generally our realized gain or loss is the amount realized, means amount you are getting in return. That may be your cash, your property, your debt relief, uh, and subtracting any kind of selling expenses from this. N- Sub from your amount realized, if you subtract your adjusted basis, means your net book value of the property, your original cost, and it is adjusted for any depreciation, or if you have done any capital improvement. So that is your adjusted basis. So if you subtract these amount, then you will get the realized gain or loss. So there are chances when your realized gain or recognized gain or loss may be not same, because there are the events when we have some realized gain but we are not recognizing on our return, and also there are chances when we have realized loss but we can't deduct in our tax return. So our recognized gain or loss will become
In that case, realized gain or loss minus any deferred or excluded amount. For example, basic example, if you are selling any property for $25,000 and its original cost was $30,000 and there was depreciation of $10,000. So, what will be your adjusted basis? 30 minus 10, 20,000. And what your amount realized? You are selling the machinery for $25,000 and $1,000 was selling expenses. So your amount realized is $24,000. So in this case, your realized gain will be $4,000 since कोई extraordinary condition नहीं लग रही. So our recognized gain will become the same. लेकिन देयर आर चांसेस समटाइम्स कि हमारा गेन तो रियलाइज्ड हो रहा है और लॉस रियलाइज्ड हो रहा है बट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, in case of related party transaction, in case of wash sale, in case of personal use property losses, in this case we are just deferring our losses. We are not recognizing any losses in the tax return. I discuss in detail just a minute. So first of all, adjusted basis rule, since we are studying about recognized gain or loss, realized gain or loss, and that will come after subtracting amount realized and adjusted basis of property sold. So amount realized, I already told you कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी के बदले में कैश मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी अनदर प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उस प्रॉपर्टी की आप फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करोगे. अगर कोई आपको डेप्थ रिलीफ मिल रही है, मींस आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो डेट विल आल्सो बिकम द अमाउंट रियलाइज्ड एंड उसमें से यू कैन सब्ट्रैक्ट द सेलिंग एक्सपेंसेस. फॉर एडजस्टेड बेसिस वी हैव सम रूल्स. लाइक आपने वो प्रॉपर्टी, आपके पास वो प्रॉपर्टी कैसे आई? मे बी यू परचेज दैट प्रॉपर्टी, कि आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी. हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपको किसी ने गिफ्ट में दी हो, या हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में मिली हो, मींस विल में मिली हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द situation, your adjusted basis calculation may vary. For example, if you have purchased that property, आपने एक घर खरीदा था और आज आप उस घर को बेच रहे हो, तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आपकी एडजस्टेड बेसिस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? आपकी कॉस्ट, आपने फॉर एग्जाम्पल वो घर $100,000 में परचेज किया था एंड आफ्टर दैट यू हैव डन सम कैपिटल इम्प्रूवमेंट, कि आपने उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट की और जो इम्प्रूवमेंट की वजह से आपकी उस घर की लाइफ टाइम बढ़ गई. सो यू आर कैपिटलाइजिंग दैट इम्प्रूवमेंट एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन. सो अगर आपको उस पर डिप्रिसिएशन लगा है, जो भी आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी एडजस्टेड बेसिस आ जाएगा परचेज प्रॉपर्टी के लिए. सो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी तो जो भी आपका परचेज प्राइस था उसमें से you can adjust it for depreciation, then you will get the adjusted basis of the property. लेकिन अगर आपको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली थी, somebody has gift you that property, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रदर ने सिस्टर को गिफ्ट कर दी, किसी अंकल ने आपको गिफ्ट कर दी. इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉपर्टी इन गिफ्ट, देन इट विल बी द डोनर्स कैरी ओवर बेसिस, कि जिसने आपको वो प्रॉपर्टी दी है, जो उसका बेसिस था वही आपका बेसिस हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के अंदर. एंड इफ अगर डोनर ने कोई गिफ्ट टैक्स भरा है उस पे, तो वो पोर्शन ऑफ गिफ्ट टैक्स भी आपका ऐड हो जाता है. डन. लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है आपकी इस गिफ्ट के केस में? अगर आपने क्या की है, वो प्रॉपर्टी सेल करी, आपको किसी ने प्रॉपर्टी दी थी गिफ्ट में और आपने कल को वो प्रॉपर्टी सेल कर दी. सो डिपेंड करता है कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की अगर आपकी बेसिस से ज्यादा है या कम है, तो it will depend on that and we have some dual basis kind of concept in this.
Next is inherited property. So if you are getting any property in inheritance, then the fair market value on the date of death will be the adjusted basis, कि जब जिस पर्सन की डेथ पर आप जिस पर्सन ने आपको वो प्रॉपर्टी दी है, सो डेट ऑफ डेथ पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपका एडजस्टेड बेसिस बन जाएगी। लेकिन अगर आपने, इसमें भी एक्सेप्शन आती है कि अगर आपने अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट चूज कर रखी है, अल्टरनेट वैल्यूएशन डेट, सो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की बेसिस होता है वो क्या हो जाता है, आपकी जो भी 6 month आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन और द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच एवर इज अर्लियर, आपको उस डे पर फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है, डे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और 6 month आफ्टर द डेथ। नेक्स्ट इज अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी आपने बिजनेस यूज में कन्वर्ट कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक घर था और आपने उसको बिजनेस में लिया है, तो जो भी आपकी लोअर ऑफ कॉस्ट होगी या फेयर मार्केट वैल्यू होगी डेट ऑफ कन्वर्जन पे, विच एवर इज लोअर, that will become your adjusted basis. Property received in like kind exchanges. So if you are getting any property in exchange of another property, कि आपको घर के बदले घर मिल गया, so उस केस में आपका जो एडजस्टेड बेसिस होता है इट विल बी कैरी ओवर बेसिस, लेकिन इट विल बी एडजस्टेड फॉर एनी डेफर्ड गेन और gain on it. Property received as compensation. So if you are getting any property in terms of your compensation, then fair market value will be your basis. So general rule is that कि जो भी आपके realized gain और losses होते हैं वो recognized भी होते हैं, लेकिन exceptions are always there. Sometimes क्या होता है कि आपके realized gains आपके रिकॉग्नाइज नहीं होते, कि आपको प्रॉफिट तो हुआ है बट आप वो रिकॉग्नाइज करने से एक्सक्लूड हो सकते हो। किन किन केसेस में, ये सारे केसेस आपके टेक्स्ट पार्ट में चले गए हैं, कि जिसमें आपके ये सारे केसेस फुली एक्सप्लेन्ड हैं डिटेल मैनर में, लाइक कि अगर आपने क्या किया, आपको कोई रिम्बर्समेंट मिली किसी प्रॉपर्टी के लिए और आपने सेम प्रॉपर्टी विद इन सर्टेन टाइम ऑफ सर्टेन पीरियड में खरीद ली, तो आपका क्या हो जाता है, गेन डेफर्ड हो जाता है, मीन्स आप गेन रिकॉग्नाइज करने से बच जाते हो। सिमिलरली अगर आपने एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली सेम, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, लाइक एंड एक्सचेंज, और आपका गेन क्या हो जाता है, डेफर्ड हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने अपना कोई प्रिंसिपल होम सेल किया है तो उसके केस में भी आपको एक्सक्लूजन मिल जाती है। So these will be come in more detail in your TCP part, क्योंकि अब आपका रेग का सिलेबस बहुत कम हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन आपका टीसीपी में भी गया है। नेक्स्ट, डिसअलाउड लॉस, इट इज इन योर रेगुलेशन पार्ट, कि जब आपको लॉसेस तो हुए बट आप वो लॉसेस डिडक्ट नहीं कर सकते अपनी टैक्स रिटर्न में। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि अगर आपकी वो ट्रांजैक्शन जिसमें लॉस हुआ है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल फादर ने अपने सन को वो स्टॉक बेचे और उसमें उसको लॉस हुआ, तो बिकॉज फादर एंड सन आर रिलेटेड पार्टी, सो उस केस में जो भी लॉस हुआ होगा फादर को, वो लॉस फादर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिमिलरली वॉच सेल मीन्स कि अगर आपने क्या किया कि कोई स्टॉक खरीदे एंड विद इन 30 days आपने क्या किया, उस स्टॉक को सेल कर दिया एंड यू आर गेटिंग सम लॉस ऑन दी सेल, तो उस लॉस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको कोई लॉस आपकी पर्सनल यूज प्रॉपर्टी पर हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई पर्सनल कार आपने बेच दी और आपको कोई लॉस हो गया उस पर, तो वो लॉस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बट अगर इन सब केसेस में आपको गेन हुआ होता इंस्टेड ऑफ लॉस, कि आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट आपको 100% रिकॉग्नाइज करना ही करना है।
ओके, नेक्स्ट इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस. अब सारे गेन और लॉसेस क्या सभी ऑर्डिनरी या कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये लॉसेस और गेन्स? सो अगर आपने कोई कैपिटल असेट बेचा है, इट विल बी योर कैपिटल गेन एंड लॉस. और आपको पता है कि कैपिटल गेन और लॉस के लिए हमारे पास प्रेफरेंशियल टैक्स रेट होते हैं 0, 15 और 20%. नेक्स्ट इज बिजनेस असेट, कि अगर आपका जो आपने सेल किया है असेट वो बिजनेस में यूज कर रहे थे आप, तो वो आपकी क्या होगी? ऑर्डिनरी इनकम, ऑर्डिनरी गेन और लॉस होगा. लेकिन अगर आपका वो बिजनेस असेट 1231 की कैटेगरी में आता है, सेक्शन 1231 में, तो उस केस में वो आपका ऑर्डिनरी और कैपिटल में से कोई भी हो सकता है. इट विल डिपेंड करता है वो आपका सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स पे, विच कम्स इन मोर डिटेल इन योर टीसीपी पार्ट. Next is depreciable business property. So under section 1231, we have two classification, 1245 and 1250. So depending upon the depreciation recapture, हमारे जो gains और losses हैं वो classified हैं किसमें? Ordinary में और capital gain में. Next is inventory. So if the inventory you are selling, then it will be a ordinary gain or loss for you. Personal use property, it can be your capital gain, but you do not get any deduction for the losses. अगर आपकी प्रॉपर्टी पर्सनल यूज प्रॉपर्टी है तो उस पर आप लॉस डिडक्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपकी वो उस पर अगर आपको गेन हुआ है तो यू कैन क्लेम एज कैपिटल गेन. अगर आपकी बिजनेस यूज प्रॉपर्टी है तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप उसे यूज कर रहे हो, लाइक कि इन्वेंट्री जो आपने विद इन फ्यू शॉर्ट पीरियड में आप उसे सेल कर रहे हो, तो वो आपकी एक ऑर्डिनरी इनकम है या लॉस है उसमें. लेकिन अगर आपकी वो प्रॉपर्टी, आपकी असेट बिजनेस के अंदर आप लॉन्गर टाइम के लिए उसे यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मशीनरी, आपकी जो भी मशीनरी है या बिल्डिंग है, तो फिर उस केस में वो आपकी सेक्शन 1231 के अंडर आती है, जिसके अंदर डिपेंड करता है कि अपॉन द डेप्रिसिएशन रिकैप्चर आप उसे ऑर्डिनरी और कैपिटल गेन में क्लासिफाई कर सकते हो, विच दिस पार्ट विल कम इन योर टीसीपी सेक्शन. Same, this part will come in your TCP section. Next is disallowed loss situation. So losses are sometimes disallowed, which I already told you. If you are selling any property to a related party, अगर आप रिलेटेड पार्टी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस केस में गेन यू कैन रिकॉग्नाइज, बट अगर लॉस है तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. इट इज डिसअलाउड लॉस. वॉश सेल, if you are like, but if you are selling any stock at a loss and purchasing that stock before or after and within 30 days, कि आप 30 days के अंदर अंदर वो स्टॉक बाय बैक कर रहे हो, या आपने कोई स्टॉक खरीदा और सेल कर दिया विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर अंदर आपकी दोनों ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस केस में आपका अगर लॉस होता है तो उस लॉस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने $150 के कुछ स्टॉक खरीदे एंड उस स्टॉक को आपने विद इन 15 डेज आपने उसे $100 में सेल कर दिए, तो जो भी आपको $50 लॉस हुआ है आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी अ वॉश सेल, कि 30 डेज के अंदर अंदर हुई है दोनों ट्रांजेक्शन्स. नेक्स्ट इज पर्सनल यूज. अगेन, अगर आपका लॉस पर्सनल यूज प्रॉपर्टी पे है तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. लाइक काइंड एक्सचेंज है तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. एनी डाउट? एनी डाउट टिल हियर?
और कोई भी चीज समझ नहीं आई हो? नो। No, क्या? ma'am. Again, yes, do not need to worry about this section 12, 31, 45, 12, 50. ये सारा पार्ट आपका टीसीपी में है. बस आपका रेग में ये डिसअलाउड लॉसेस वाला पार्ट है या कैपिटल गेन्स और लॉसेस वाला पार्ट है. बट अगर सेक्शन 12, 45 ये सब आपका टीसीपी में है. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट आईआरए डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये सारा पार्ट आपका क्या था बेसिकली, कि क्या इनकम आपकी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कितनी इनकम रिकॉग्नाइज्ड करते हो आप, कैसे रिकॉग्नाइज्ड करते हो, और लॉसेस के लिए कि कौन से लॉसेस आपके डिसअलाउड होते हैं. अब आते हैं आपकी डिडक्शंस के बारे में. आपकी जो फॉर्म 1040 में एडजस्टेड ग्रॉस इनकम से पहले आपकी क्या आती है, जस्ट अ मिनट. आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम कब आती है, जब आप क्या करते हो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हो. एडजस्टमेंट मीन्स कि आपकी सर्टेन अबव द लाइन डिडक्शंस होती हैं कि जो आप डिडक्शन कर सकते हो आप अपनी ग्रॉस इनकम को रिड्यूस करने के लिए. सो उन डिडक्शंस में से एक डिडक्शन आती है आपकी आईआरए रिलेटेड. अब आईआरए क्या होते हैं? आईआरए लाइक अ पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान एनी, और जो आप क्या करते हो, इंडिविजुअल का खुद से आप ऑन कर सकते हो. मीन्स जो आपके ट्रेडिशनल 401 के होते हैं वो आपके एम्प्लॉयर स्पॉन्सर होते हैं, कि जब आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयर आपकी बेसिस पर वहां पर आपकी वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं. लेकिन आप खुद से भी करवा सकते हो, लाइक अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या खुद से करवाना चाहते हो तो आप आईआरए प्लान्स ले सकते हो. अब आईआरए में क्या होता है, आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस रोथ आईआरए. ट्रेडिशनल वर्सेस रोथ आईआरए. ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आपकी जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, सपोज अगर आप $5,000 की कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो आपकी डिडक्टिबल हो जाती है. आप उसे रिड्यूस कर सकते हो अपनी टैक्स रिटर्न में, डिडक्शन ले सकते हो. लेकिन रोथ आईआरए में क्या होता है कि आपकी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नॉन डिडक्टिबल होती है. मींस आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती अगर आपके पास रोथ आईआरए प्लान है तो. और सम टाइम ट्रेडिशनल आईआरए में आपके पास क्या हो जाती है, नॉन डिडक्टिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आ जाती हैं. वो किस केस में आती हैं, कि जब अगर आपके पास क्या हो, आपके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्लान भी है, कि आपके एम्प्लॉयर ने भी आपको कोई ट्रेडिशनल 401 के या रॉथ 401 के प्लान दे रखे हैं और उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो. सो उस केस में आपको क्या होता है कि सर्टेन आपकी फेज आउट लिमिट्स होती हैं, कि आप अगर आप यहाँ तक मतलब आपकी इनकम है और इतना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाती है, फेज आउट डिडक्शंस मिलनी शुरू हो जाती है. कि अगर आपकी अमाउंट इससे अबव जा रहा है तो फिर उस केस में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो फेज आउट होने शुरू हो जाते हैं. मींस वो डिडक्टिबल नहीं होते फिर, या कुछ अमाउंट तक ही डिडक्टिबल होते हैं. तो फिर उस केस में ट्रेडिशनल की आपकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, डिडक्टिबल और नॉन डिडक्टिबल contributions. Then, so timing is before or after the age of 59 and half years, you can have IRA plan. Purpose is normal, early or qualified distribution. So what happens again, ट्रेडिशनल आईआरए में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो उस केस में आपकी जो भी डिडक्शन, जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो डिडक्टिबल हो जाती है. लेकिन अगर आपकी क्या है, नॉन डिडक्टिबल पोर्शन है, मतलब सपोज आपके पास कोई और प्लान भी था जिसकी वजह से अब आपने ये प्लान लिया तो, बट आपकी जो डिडक्शंस थी वो सिर्फ 5,000 अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तो सिर्फ आपको 2,000 तक ही आप टैक्स रिटर्न पे डिडक्ट कर पा रहे थे. तो उस केस में क्या होगा, आपकी वो नॉन डिडक्टिबल पोर्शन बन जाएगा, कि जो आपका डिडक्ट नहीं हो रहा था. सो अगर आपको
आपको डिडक्शन मिली है किसी प्लान की, अगर आपको किसी प्लान की डिडक्शन मिली है, लाइक ट्रेडिशनल आईआरए में कंट्रीब्यूशन के टाइम पर आपको डिडक्शन मिली है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर आपका क्या हो जाएगा, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो भी आपको अर्निंग या प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न में मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपको जिस अमाउंट के लिए डिडक्शन नहीं मिली वो आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये पार्ट किसको समझ आया और किसको नहीं? देखो, अगर आपके पास आईआरए में बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन है। एक ट्रेडिशनल आईआरए, इसी के साथ एक कैटेगरी आ जाती है आपकी नॉन डिडक्टिबल आईआरए वाली आईआरए, और थर्ड कैटेगरी इज रोथ आईआरए। सो ट्रेडिशनल आईआरए में आपको सारी डिडक्शंस मिलेंगी जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो जब डिडक्शन ले रहे हो तो कल को जब भी आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो आपकी वो सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है वापस या अर्निंग्स मिल रही है उस पर, सारा आपका क्या होगा, टैक्सेबल। रोथ आईआरए में क्या होता है कि जब आपको कोई डिडक्शन नहीं मिल रही, कि जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिल रही, तो फिर जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिशनल आईआरए में ही अगर आपका नॉन डिडक्टिबल आईआरए है, मींस आपको कुछ अमाउंट के लिए डिडक्शन नहीं मिली आज, तो फिर उतने ही अमाउंट में क्या हो जाएगा, आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो उतना अमाउंट आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। या अगर आपको बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिली तो उस केस में क्या होगा, आपका क्या सारा पोर्शन नॉन टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। उस केस में फिर सिर्फ आपका प्रिंसिपल तो नॉन टैक्सेबल होगा, लेकिन अर्निंग पर आपको स्टिल टैक्स पे करना पड़ेगा। सो आईआरए से रिलेटेड आपको डिडक्शंस मिल सकती हैं आपके 1040 में। इतना क्लियर? सो ये कैलकुलेशन दे रखी है आपको कि अगर आपकी डिडक्टिबल कंट्रीब्यूशन और अर्निंग है तो वो आपकी ऑर्डिनरी इनकम एज अ टैक्सेबल होती है। देन जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है वो ऑर्डिनरी इनकम के रेट पर आपका टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपका नॉन डिडक्टिबल कंट्रीब्यूशन था, मींस कि अगर आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसके लिए आपको कोई डिडक्शन नहीं मिल रही थी, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपकी स्टिल अर्निंग्स तो टैक्सेबल होती हैं, तो फिर उस केस में आपकी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। सेम इन द केस ऑफ रोथ आईआरए। लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन है, मींस आपको आपके कंट्रीब्यूशन पर आपको कुछ अमाउंट पर डिडक्शन मिली है, देन उस केस में आपका टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल अमाउंट प्रो रेटा हो जाता है, मींस आपका क्या डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी टैक्सेशन ऑफ रोथ आईआरए डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपकी आईआरए पर जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर आपने कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया तो वो आपका, आप उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कब ले सकते हो, आपकी एज क्या होनी चाहिए, 59.5 ईयर्स होनी चाहिए, या और आप डिसेबिलिटी, डेथ या फर्स्ट टाइम होम परचेज कर रहे हो उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो, तो आपके क्या हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशंस, टैक्स फ्री हो जाएंगी इन केस ऑफ रोथ आईआरए। बट ट्रेडिशनल आईआरए में तो आपकी टैक्सेबल है, लेकिन रोथ आईआरए में इट विल बिकम दी नॉन टैक्सेबल।
But if you are taking your distribution before this age, means your आप आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वालिफाइड नहीं हो रही, मीन्स इस टेस्ट को फॉलो नहीं कर पा रही, तो उस केस में आपकी क्या होती है, जो भी अर्निंग्स होती हैं उन पर आपकी 10% पेनल्टी लग के चलती है रोथ आईआरए के केस में। रोथ आईआरए में जबकि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस टाइम लिमिट से पहले उसे विड्रॉ करवा रहे हो तो उस केस में आपकी 10% पेनल्टी चार्ज होती है। और वो पेनल्टी आपकी कब चार्ज नहीं होगी, अगर आपकी कुछ एक्सेप्शंस अप्लाई होती हो तो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी की डेथ या डिसेबिलिटी के केस में आपने लिया है, आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहीं एजुकेशन एक्सपेंसेस भरने के लिए लिया है, आपने कोई घर फर्स्ट टाइम परचेज करने के लिए लिया है, कोई सब्सटेंशियली इक्वल पीरियोडिक पेमेंट अगर आप कहीं कर रहे हो, या कोई आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस अनरिम्बर्स्ड हैं, या कोई बर्थ और अडॉप्शन से रिलेटेड आपने लिए हैं, तो फिर उस केस में आपकी 10% पेनल्टी क्या हो जाती है, माफ हो जाती है। रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अगर आपको मान लो आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ली, तो क्या वो आपकी लाइफ टाइम थोड़ी इसमें पड़ी रहेंगी। तो एट द एज ऑफ 73 आपकी क्या हो जाएंगी, ये जो भी अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। देन और वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ट्रेडिशनल है या रोथ आईआरए है, वो आपका टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल बन जाएगा। ओके अगर आप क्या करते हो, अपने प्लान को ट्रस्टी टू ट्रस्टी ट्रांसफर करवा रहे हो, या आप दूसरे प्लान में ट्रांसफर करवा रहे हो, तो इट विल बिकम टैक्स फ्री। अगर आप क्या करते हो, विद इन 60 डेज आप रोल ओवर कर रहे हो, मीन्स वन प्लान से दूसरे प्लान में कन्वर्ट करवा रहे हो। बट अगर आपकी ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर उस केस में आपकी अगेन जो भी अमाउंट है वो टैक्सेबल भी होगा, प्लस पेनल्टी भी लगेगी। डन। नेक्स्ट अबाउट ट्रेडिशनल आईआरए। ट्रेडिशनल आईआरए अगेन जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन अगर आप जो है आप अर्ली विड्रॉ करवाते हो उसे, तो फिर आपकी 10% पेनल्टी इसमें भी चार्ज होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज एन्यूटी। एन्यूटी अगर आपने कोई एन्यूटी परचेज की है जिसमें आपको कोई फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट मिलने वाली है, हो सकता है वो आपको फिक्स्ड पीरियड के लिए मिले, लगा लो कि 10 साल के लिए आपको मतलब मिलने वाली है, या हो सकता है कि वो आपको लाइफ टाइम मिले। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हमारी जो भी अमाउंट टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में आता है वो बेसिकली आपका प्रोरेटेड होकर आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आपकी कोई फिक्स टर्म एन्यूटी है कि आपने कोई 10 ईयर एन्यूटी खरीदी फॉर $100,000 एंड that pays 1200 that pays sorry yes that pays you $1,200 per month. Suppose you have purchased the annuity, आपने एक एन्यूटी खरीदी $100,000 में, और उस एन्यूटी के अकॉर्डिंग आपको $1,200 पर मंथ मिलेगा, मीन्स आपको पर ईयर आपको $14,400 मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो उस केस में ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो ये कितना टैक्सेबल होगा या कितना टैक्सेबल नहीं होगा, इट विल like prorated on some basis, like we have to calculate our exclusion ratio, whatever we are like investing and whatever we are getting in return. So fraction of this will become the non-taxable part. So if you are
purchasing your annuity for $100,000 and getting $144,000 in return. So it will become 69.44 percentage. It is a exclusion part, means it is a tax free portion for you. So out of 1200 आपका 69% पार्ट क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल, और बचा हुआ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. क्लियर? कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है और इन रिटर्न जो आपको मिल रहा है, अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सक्लूजन रेशियो आ जाएगी. ये थी आपकी फिक्स्ड टर्म एन्युटी. लाइफ एन्युटी में क्या होता है कि जब आपको नहीं पता, मतलब कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है, आपको लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको वो एन्युटी मिलती रहेगी. तो उस केस में क्या होता है कि हम एक एक्सपेक्टेड ईयर्स निकाल के चलते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक टैक्स पेयर ने $120,000 में एक एन्युटी परचेज की, जिसमें उसे $1,000 पर मंथ क्या मिल रहा है, उसे पेमेंट मिल रही है. तो आपकी जो भी IRS की एक्सपेक्टेड टेबल है, जिसमें मतलब हम एक्सपेक्टेड ईयर्स निकालते हैं, हम उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम निकाल के चलते हैं कि मे बी कितने साल वो पर्सन जी सकता है. तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सक्लूजन रेशियो. Payment tax free portion we are calculating on the basis of exclusion ratio. So whatever you are investing, $120,000 basis, divide by $120,000 expected return into $1,000 the periodic payment. So if your total received is greater than your expected return, then excess will be fully taxable. So अगर आपको expectation से ज़्यादा मिल रहा है तो वो आपका portion क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा. Again this part is same. अगर अर्ली विड्रॉ करते हैं तो हमारी 10% पेनल्टी और ऑर्डिनरी टैक्स रेट जो भी अर्निंग्स पर बनता है टैक्स, और 10% पेनल्टी लगकर चलती है. डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम क्वालिफाइड एन्युटी. सो अगर आपकी एन्युटी IRA या क्वालिफाइड प्लान का पार्ट है, सो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज ऑर्डिनरी इनकम. कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल बन जाएगा एज अ ऑर्डिनरी इनकम, एंड सब्जेक्ट टू दी रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कि एट द एज ऑफ 73 आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा. और अगर अर्ली विड्रॉ करते हो तो फिर उस केस में आपकी अगेन 10% पेनल्टी लगेगी, unless any exception is applied on this. Next is state and local tax refund. So if you are getting any refund for your state and local tax, अगर आपको क्या है, कोई स्टेट या लोकल टैक्स पर रिफंड मिल रहा है, तो वो रिफंड आपका टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इट विल डिपेंड कि आपने लास्ट ईयर उस टैक्स से रिलेटेड आइटमाइज डिडक्शन ली थी या स्टैंडर्ड डिडक्शन ली थी. अगर आपने लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन ली थी तो डेट मीन्स कि वहां पर आइटमाइज डिडक्शन का कोई रोल ही नहीं था. तो उस केस में आपको जो भी रिफंड मिलता है वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन अगर आपको प्रायर ईयर में आपने आइटमाइज डिडक्शन ली थी, मीन्स आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिला था, तो फिर उस केस में आपकी जो भी रिफंड है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा जब भी आपको वो रिफंड मिलेगा. क्लियर? और अगर इन केस आपको सर्टेन अमाउंट ही टैक्स का बेनिफिट मिला था, तो उस केस में जो भी रिफंड है उसका सर्टेन अमाउंट ही आपको टैक्सेबल हो जाएगा. कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ $5,000 में आपको $5,000 तक का ही बेनिफिट मिला था लास्ट ईयर. सो अगर इस साल आपको $7,000
आपको रिफंड होता है, तो फिर उस केस में आपका $5,000 ही टैक्सेबल होगा कि जितना आपको लास्ट ईयर में बेनिफिट प्रोवाइड हुआ था। एनी डाउट? No, Parima. ओके, सो दिस इज ऑल समराइज दिस कि अगर आपको कोई टैक्स पेयर ने आइटमाइज डिडक्शन ली थी, अगर नहीं ली थी तो फिर आपका रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, अगर ली थी तो टैक्सेबल होगा। और कितना होगा टैक्सेबल कि जितना आपने बेनिफिट रिसीव किया था लास्ट ईयर में। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग स्टैंडर्ड वर्सेस आइटमाइज्ड डिडक्शन। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? जो डिडक्शंस आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइलिंग स्टेटस मिलती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द फाइलिंग स्टेटस लाइक सिंगल, मैरिड फाइलिंग, जॉइंटली, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, आपकी कुछ डिडक्शंस फिक्स्ड की गई हैं। और आइटमाइज डिडक्शंस क्या होती हैं कि जो आपकी कुछ सर्टेन आइटम्स पर बेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मेडिकेयर एक्सपेंसेस, आपकी चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपके स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, तो उनके बेसिस पर जो आपको डिडक्शन मिलती हैं। आप स्टैंडर्ड और आइटमाइज डिडक्शन में से दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रही है। ओके, सो इन केस ऑफ एलिमनाई और एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट प्रॉपर्टी सेटलमेंट की क्या आपका जो भी रिसीवर के लिए क्या टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, या गिवर के लिए क्या डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द डेट ऑफ डाइवोर्स। सो अगर किसी टैक्स पेयर का डाइवोर्स 2018 से पहले पहले हुआ है, आपका मीन्स बिफोर January 1, 2019 या अप टू December 31, 2018, अगर डाइवोर्स हुआ है तो उस केस में क्या होगी, आपकी जो भी एलिमनी है वो पेयर के लिए डिडक्टिबल होगी, यानी एक एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो, और रिसीवर के लिए वो एक इनकम होगी। लेकिन अगर डाइवोर्स आपका 2018 के बाद हुआ है तो उस केस में न्यू रूल के अकॉर्डिंग आपकी ना तो टैक्सेबल होगी रिसीवर के लिए और ना ही पेयर के लिए वो एक एक्सपेंस होगी इन केस ऑफ एलिमनी। नेक्स्ट, चाइल्ड सपोर्ट और प्रॉपर्टी सेटलमेंट, अगेन दीज आर नॉट डिडक्टिबल फॉर द पेयर एंड नॉट टैक्सेबल फॉर द रिसीवर, ध्यान रखना। सो दीज आर रिक्वायरमेंट गिवन कि अगर किसी टैक्स पेयर का डाइवोर्स 2019 से पहले होता है तो उस केस में एलिमनी के रिगार्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो 6 कंडीशन मीट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मीन्स एक रिटर्न डाइवोर्स एग्रीमेंट होना चाहिए, कैश ओनली कि जो भी एलिमनी पेड की है वो कैश में होनी चाहिए बिकॉज प्रॉपर्टी आर नॉन डिडक्टिबल और नॉन टैक्सेबल। सेपरेट हाउस होल्ड की जो भी पार्टीज हैं वो सेम हाउस होल्ड का मेंबर नहीं होनी चाहिए वेल पेमेंट मेड। नो लायबिलिटी आफ्टर डेथ कि अगर ऑब्लिगेशन मस्ट टर्मिनेट अपॉन डेथ ऑफ रिसिपिएंट, not designated as non-alimony. The agreement must not specify the payment as non-alimony. कि उस एग्रीमेंट में ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि जो भी आपकी ये पेमेंट है वो नॉन एलिमनी है, और वो चाइल्ड सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी ये कंडीशन मीट करती हैं ओनली देन यू कैन क्लेम द एलिमनी एज एक्सपेंस इन योर फॉर्म 1040, और जिसको भी रिसीव हो रही है वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो आपकी एलिमनी जो है आप नॉन डिडक्टिबल हो जाएगी, मींस आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा और ना ही वो टैक्सेबल होगी।
Okay, so आप यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेना. So we will continue from here tomorrow. Okay, done, Garima. Thank you. Okay, thank you. Bye, Bye everyone. bye. Thank you, ma'am. Bye. Okay, welcome. Bye.